Namaskar. Welcome everybody. Another day of excitement. So thanks a lot for first joining in today, and I'm very glad that I'm seeing a lot of enterprising people like Shabana has joined. I think whenever Sanket comes, Shabana is always there. So Sanket, you already have a fan. She's always there whenever you're there. Then we have Jyoti also from Pune. She's also joined. A lot of known people. Kalpana, Jyoti Sunil again is one of our top distributors from Pune. So guys, all the people who are from Mumbai, just type, if you can just type Mumbai, so I'll know that you're from Mumbai. All those who are from Mumbai, can you type Mumbai? So we'll have some interaction. Yes, very good, very good. Okay, come on, all the Mumbai guys, come on, guys, all from Mumbai, or from Pune, or from any city, whichever city you are. If you can just type, so we'll know exactly from where we are getting people. Okay, we have Mumbai. Anybody from Pune? Oh wow, we have somebody from Pune. Okay, from Bihar, Mumbai. Okay, make some noise. Type your city. Okay, Nasik. Wow, fantastic. I studied in Nasik. So Nasik, which is the place where I studied in Bhosle Middle School in Nasik, Bihar, Pune. Okay, I've got good news, guys. Pune guys, tomorrow I'm going to be in Pune at the Hyatt Hotel in Hinjewadi. So that's a five-star hotel in Pune, Hyatt. So I'll be there for 2 days. So you want to catch up and exchange some ideas. Only people who are serious. Hadap sir, okay, fine. Mumbai, Ahmedabad. Wow. We got somebody from Ahmedabad, Mumbai. Wow, very good, very good. Excellent. I'm seeing somebody from Pune, Bihar. Oh, wow. So, Sanket, you see the amount of follows you have from all over India. Okay, then we had. So we have Poonam also joined. Thanks, Poonam, for joining. Okay, so we'll not take time. As you know, Forever always comes out with exciting things. हम लोग हर टाइम एक्साइटमेंट चीज लाते हैं. मेरे को बहुत जन, मैं किसी भी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे को एक कोई दूसरा कंपनी का आदमी ने मेरे को फोन किया, हमारी ऐसा है, हमारा इतना ज्वाइनिंग है, हमारा इतना ये है वो है. मैंने उनको एक ही सवाल किया, कोई प्रूफ तो दो. अभी हमारा इसमें तो 10,000 ज्वाइनिंग है, लेकिन नोट किधर है? तो यू अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको जो भी बोलते हैं ना हमारा इतना ज्वाइनिंग है वो है, नोट किधर है वो पूछो. नोट 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 का मतलब पैसा. अभी हमारा बिजनेस में क्या होता है वो तो सब हम लोग यूट्यूब, मेरा व्हाट्सअप, सब. अगर आपको मेरे तरफ से व्हाट्सअप चाहिए और आप मेरी टीम में हो, प्लीज सेंड मी ऑन माय मोबाइल नंबर. मैं अभी मेरा मोबाइल नंबर अभी डालता हूँ. एंड व्हाट यू कैन डू इज you can just send me a hi, your name and your FLP ID number, so I know you're in my, आप मेरे टीम में हो. और आप मेरे टीम में हो तो you'll get a WhatsApp from me with all the latest information all the time. So मैं वो नंबर भी डालने वाला हूँ, but I will not take much time. आज का जो स्पीकर है जबरदस्त है. He is 19 years old. Okay, now what is more important is not 19 years old, क्योंकि यहाँ जो लोग 20, 25, 30, 40, 50 है, उन लोग रो रहे हैं. हम कैसा करेंगे जब एक 19 साल का बच्चा कर सकता है, which is so powerful. And guess what, he's going to meet me in Pune, in Hinjewadi, and we're going to work a lot of things. So guys, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हमको किसी भी कंपनी का बुराई नहीं करना है. आजकल बाबा लोग को भी पैसा कमाने का है, हम उसका बुराई नहीं करेंगे, बट जैसा फॉरएवर जैसा बिजनेस आपको कभी लाइफ में नहीं मिलने वाला है. और मैं इसमें ओपन चैलेंज करता हूँ किसको भी. तो लेकिन मैं इस आज का स्पीकर नहीं हूँ. द स्पीकर टुडे इज संकेत, who's fantastic. Sanket, all ready to meet tomorrow? Sir, full ready. All All excited? ready. Ready? Yes, yes, yes. No, Okay. I am excited. Hello. So I Okay, will what not to take watch? much time. Guys, thank you. Sanket, the screen is all yours and you can take over. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. Yeah. So मेरी वॉइस आ रही है सभी लोग? प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स अगर आप लोगों को मेरी वॉइस वगैरह आ रही होगी प्रॉपर. Yes, voice is perfect. Voice is perfect. Okay, great. सो टुडेज टॉपिक जो है हमारा आज का टॉपिक है वो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, द पावर ऑफ फॉरएवर बिजनेस. यानी कि जो फॉरएवर बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है उसकी पावर क्या है. यानी कि अगर आप इस बिजनेस में बिल्कुल नए हो तो आपको समझने को मिलेगा कि किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रोस्पेक्ट के सामने हमें प्रेजेंट बिजनेस को पहली बार देखने के लिए आए हो, आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ चीजें नहीं पता,
तो आपको एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग सारी चीजें पता चल जाएगी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में, और अगर पुराने हो तो आपको चीजें सीखने मिलेगी किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको सिंपली अपनी स्क्रीन को शेयर करके इस प्रेजेंटेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू थैंक्स टू मिस्टर साइमन सर कि जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज किया। आई वांट टू थैंक टू ऑल ओवर एफएलपी कोर टीम, जिनकी वजह से हम मीटिंग कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम कनेक्टेड हो सकते हैं और जहां से हम सारी चीजें सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप सभी लोग ना अपने मोबाइल फोन को ना साइलेंट मोड पे कर देना। आने वाले 30 to 45 मिनट्स के लिए ना हम कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जिसके लिए आपको बिल्कुल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आपको पूरी फोकस से अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि बिजनेस की पावर क्या है, फॉर एवर से बिजनेस ग्रो होता है और किस तरीके से हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। पुराने लोगों तो किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रोस्पेक्ट के सामने प्रेजेंट करना है। तो आज हम कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें पैसे कमाने हैं ना तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, तो हम जॉब करें या तो हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करें। बट आज की दिन में अगर हम आज की डेट की मार्केट की अगर हम बात करें तो दोनों जगह पर बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ ये दो ही तरीके हैं पैसे कमाने के लिए या मार्केट में और भी कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं, यानी कि किस तरीके से हम अपने पूरे लाइफ पर में पैसे कमाते हैं। क्या हमारी एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी है, फॉर अपॉर्चुनिटी क्या है एग्जैक्टली उसका हम ओवरव्यू देखेंगे। एक्सपर्ट के ओवरव्यूज इसके ऊपर क्या है, इनकम पोटेंशियल किस तरीके से आप यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो, कितने सोर्सेस ऑफ इनकम आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है कि जिसके थ्रू आप इस बिजनेस में ग्रो करोगे इजीली। स्टार्ट करते हैं हमने पहले से ना। अभी अगर आपने देखा होगा तो बचपन से बहुत सारे लोगों को बताया जाता है, बचपन से एक बात हमारे फैमिली में बताई जाती है कि लोगों को पैसे कमाने तो आप लोगों को जॉब करना है। अब जॉब करना है यानी कि आप लोगों को पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद आपको जॉब करनी है। अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो आपको फिर एक दुकान डाल के दी जाएगी कि जहां पर आप सेल्फ एम्प्लॉय बन के अपने बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जॉब में क्या क्या चैलेंजेस लोग आज की डेट में फेस कर रहे हैं मार्केट में। सबसे पहले तो है अनसर्टेनिटी सारी जगह पर। कोई भी बंदा ना आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपके एजुकेशन खत्म होने के बाद आपको जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। उस लॉकडाउन में आपने देखा बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। जिन लोगों के पास जॉब्स है वो लोगों को जॉब को सिक्योर करना मुश्किल हो रहा है। बंदे होते हैं क्या ना, यार जॉब है बट सिक्योर नहीं है, आज अगर जॉब गई तो मैं किस तरीके से अपने फैमिली को सर्वाइव कराऊंगा, सारी चीजें। कुछ लोगों का अगर हम जॉब की बात करें तो तरीके से शेड्यूल पैक होता है कि वो अपने फैमिली को टाइम भी नहीं दे सकते। बंदा स्ट्रेस आउट होता है, अनहैप्पी होता है, बोर हो जाता है उसी वर्क को करंटली बार बार करते हुए। बट कुछ होते हैं जो बिजनेस माइंडसेट से होते हैं, जो बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं, वो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं। बट अगर आज की डेट की हम बात करें तो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मार्केट में अगर आप जाओगे तो एक ही तरीके से बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करने वाले प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारे बढ़ता जा रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, कंपटीशन अब बढ़ेगा ना, आपको जो Sanket, प्रॉफिट मार्जिन होगा वो अपने आप। Sanket, your voice is यस सर। there's a pause coming in the voice when you speak. Now there's a little कहाँ pause पे? coming. मतलब वो वॉइस में थोड़ा पॉज आ रहा है, जैसे व्हेन यू टॉकिंग ना थोड़ा पॉज आ रहा है। जस्ट चेक योर साउंड ना। अब तो गाइस अगर मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही होगी तो चैट बॉक्स में मुझे बताना वन टाइप करके। या नाउ द वॉइस इज परफेक्ट। ओके ओके ओके। अगर हम बिजनेस की बात करें तो ऑब्वियसली कंपटीशन अपने आप नीचे होता जाएगा। अगर हम बात की जहाँ पर बहुत सारे बिजनेस को परमिशन जो कि नॉन इसेंशियल बिजनेस से हो रहे हैं, तो कुछ लोगों ने बिजनेस के लिए लोन लिया होता है, कुछ
लोगों ने सैलरी होती है, बहुत सारा माल अपने गोडाउन में भरा हुआ होता है, उसकी सेल करनी होती है, ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जॉब में भी इसमें। बट साथ ही साथ ना हर एक बंदे की ना लाइफ में कुछ एक्सेप्टेशंस होती है कि जो अपने लाइफ में कुछ कुछ भी हो सकती है। एक्सेप्टेशन से हम ड्रीम भी कहते हैं कि यार मेरे ना कुछ ड्रीम्स है, मुझे ना अपने लाइफ में कुछ तो ना करना है, प्रूव करना है अपने आप को। हो सकता है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती होना, या तो आपकी कोई ड्रीम हो सकती है, साथ हॉलीडेज पे जाना बहुत पसंद है, आप फैमिली हॉलीडेज पे जाना पसंद होगा, आपको ड्रीम हाउस है, आपको ड्रीम्स भी क्वालिफाई करने होते हैं, आपको उस ड्रीम को भी पूरा करना होता है ताकि आप अपनी I'm लाइफ को in पूरे the one सेटिस्फेक्शन के साथ आगे sign. सर्वाइव करते हो। अपने ड्रीम्स के ना, तो ड्रीम्स के लिए आपको लगेंगे पैसे, तो पैसे चाहिए होते हैं। तो बचपन से आपको फिर से होता है कि अगर आप पैसे कमाना है तो हमें जॉब करना है या तो हमें बिजनेस करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताता हूँ कि जिसके थ्रू ना पूरे दुनिया भर में से लोग पैसे कमाते हैं। किस तरीके से वो पैसे कमाएंगे, एसबीआई मॉडल चलता कैसे, मैं आपको बताता हूँ। रॉबर्ट के इन्वेस्टर है, उन्होंने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस, वो ये कहते हैं कि इस पूरे दुनिया भर में से जितने भी लोग होंगे, राइट, वो इन्हीं सेक्टर से पैसे कमा सके। एम एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय या इन्वेस्टर होंगे। अब हम बात कर डाइवर्सिफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात करता हूँ, ई और एस की। अब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है, आपको पता है आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय हो, बट अगर आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉय। अगर हम पूरे दुनिया भर में से 95% पीपल ऐसे हैं कि जो इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, और 5% की यहाँ पर वेल्थ है वो जनरेट हो पा रही है। बट 95% वेल्थ फिर कहाँ पे तो 95 जा रही है बी और आई में, यानी कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास। अभी जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर होते हैं, उनको हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या ऐसा अलग करते हैं कि जिसकी वजह से वो 90% बात करें इन्वेस्टर के नाम से ही पता चल जाता है कि अपने पास पहले ही पैसे, उसी पैसों को हमें आगे इन्वेस्ट करना है, और वहां से जो भी रिटर्न आएंगे उसके थ्रू हम अपनी इनकम को अर्न कर पाएंगे। अब बात करते हैं बी की, यानी कि बिजनेस ओनर की। अब बिजनेस ओनर क्या करते हैं, बिजनेस ओनर के पास अपना खुद का नेटवर्क होता है कि जिस नेटवर्क के थ्रू वो काम करते हैं। यानी कि कोई भी बिजनेस ओनर आप पकड़ लीजिए, जो भी बड़े बिजनेसमैन से, राइट, रतन टाटा, अंबानी, वो कभी भी आपको फील्ड में काम करते हुए नहीं देखेंगे एज एन एम्प्लॉय। बट अगर इससे ही वो काम करके लेते हैं, बट प्रॉफिट क्यों सबसे ज्यादा उनका प्रॉफिट होता है, बिकॉज उन्होंने वो सिस्टम क्रिएट किया, उन्होंने वो नेटवर्क की शुरुआत करी। नो डाउट उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी अपने एम्पायर को खड़े करने के लिए, बट हाँ, वहां से ही उनको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की जो आइडिया आती है, वो क्रिएटिविटी होती है। किस तरीके से वो क्रिएटिविटी यूज करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से उस चीज को समझ पाओगे। अब मैं बात करता हूँ मेरी, कि मैं ना एक ई और एस कैटेगरी में भी काम कर रहा हूँ। ई और एस कैटेगरी में यानी कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और ये तो सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट चूज किया, तो आपको भी पता है कोई भी बिजनेस आपको करना है तो विदाउट प्रोडक्ट उस बिजनेस को नहीं कर सकते। तो मैंने एक प्रोडक्ट चूज किया, बर्गर का। अब मैं काम कर रहा हूँ, जैसे एन एग्जाम्पल कि मैं पूरे दिन भर काम करके ना 10 प्रोडक्ट की सेल कर पा रहा हूँ। अब अगर मैं 10 बर्गर की सेल करता हूँ एक दिन में, मुझे अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट हो जा रहा है। तो पूरे महीने भर में मैं 300 बर्गर की सेल कर रहा हूँ, तो एक महीने में मुझे लगभग 30,000 का मोटा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, 30,000 की मेरी इनकम हो जाएगी। अब उसी एग्जाम्पल को हम कुछ अलग, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग एम्प्लॉय होते हैं, यहाँ पर हम प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हैं। बट अगर आप एम्प्लॉय, आप अपने टाइम को सेव करते हो, यानी कि अगर आप एम्प्लॉय हो, यहाँ पर मैं तो बर्गर की सेल कर रहा हूँ, करते वहां पर लोग 12 घंटे की जॉब करते, अकॉर्डिंगली गेट योर इनकम। और इसी सेक्टर में ना लगभग 95% लोग ऐसे हैं कि जो काम कर रहे हैं, बट अगर हम वेल्थ की बात करें, पैसों की बात करें, तो सिर्फ 5% लोग ऐसे कि जो यहाँ पर पैसे कमा पा रहे हैं। और जो पैसे कमा रहे हैं तो उनकी एंजॉयमेंट यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा पा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने देख लिया बहुत साल मैं काम कर रहा था, 30,000 पर मंथ मेरा प्रॉफिट आ रहा था, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंगली मेरा प्रॉफिट हो रहा है। सेटिस्फाइड नहीं, ड्रीम्स बड़े थे, तो मैंने क्या किया, चीजों को अलग तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करी। मैंने थोड़ा सा क्रिएट स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट मैंने सेम रखा, बट कैटेगरी को मूव करके मैं एंटर हो गया बी कैटेगरी में, जो कि होती है बिजनेस ओनर की कैटेगरी की, जहां पर हम अपने खुद के सिस्टम को डिजाइन करते हैं।
अब जहां पर मैं अकेला काम कर रहा था, मैंने क्या किया, मैंने 50 लोगों की टीम को खड़ा कर। अब हर एक बंदे को मैंने खुद सिखाया कि किस तरीके से आप बर्गर को बनाएंगे, किस तरीके से आप पूरे दिन भर में से 10 बर्गर की सेल कर पाओगे। अब मैंने पूरी टीम को ट्रेन किया अच्छी तरीके से, तो 50 लोग मिलकर के 10-10 बर्गर की सेल करते हैं, तो पूरे दिन भर में से 500 बर्गर की सेल हो रही है मेरे लिए। अब ये सिस्टम मेरा है, ये बर्गर बनाने का तरीका मेरा था, सारी चीजें मैंने खुद से मैनेज करी, लोगों को मैंने ट्रेन किया। तो मैं बर्गर की अगर सेल हो रही है तो उसके पीछे से 10 रुपए ना मैं अपने लिए रखूंगा, अपना प्रॉफिट रखूंगा। तो एक दिन में मेरे नियर बाय 500 बर्गर सेल हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट मेरी इनकम हो रही है 5,000 रुपए, जो कि मेरी डेली इनकम हो। पूरे महीने की अगर मैं बात करूँ तो मेरे 50,000 बर्गर की सेल करेगी, एंड अकॉर्डिंग टू माई प्रॉफिट मेरी जो इनकम होगी वो नियर बाय 1,50,000 तक पहुंच जाएगी। अब 1,50,000 तक मेरी इनकम जा रही है। अब मुझे चैट बॉक्स में ये बताना कि यहाँ पर सबसे ज्यादा effort कौन कर रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ 1.5 लाख की इनकम अर्न करने के लिए, या मेरी टीम काम कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली मुझे पैसे आ रहे हैं। अगर आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो काम है ना, वो मेरी टीम कर रही है, मेरे अंडर जितने भी लोग हैं ना वो काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैं कमा। क्यों? बिकॉज आई एम अ बिजनेस ओनर, मैंने उस सिस्टम को क्रिएट किया है। सेम एज लाइक एन एम्प्लॉय, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है ना, वो भी उसी तरीके से काम करता है। आप अगर रिलायंस में काम कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा मेहनत आपकी होगी, पूरी टीम की मेहनत होगी। सबसे प्रॉफिट अंबानी का होगा, ना कि आपका होगा। उसी प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा बिजनेस ओनर दे देता है एज एन सैलरी करके। अगर हम बात करें बी सेक्टर की ना, तो बी सेक्टर में ये चीजें नहीं समझ में आती बहुत सारे लोगों को, बिकॉज बचपन से हमें नहीं बताया जाता। 5% ही लोग ऐसे होते हैं जो इस सेक्टर में काम करते हैं, और वो 95% तक की वेल्थ को एंजॉय कर पाते हैं। यहाँ पर आपको एक एम सिंबल दिख रहा होगा, मैकडोनल्ड्स का लोगो है। हर एक बंदे को पता है मैकडोनल्ड्स की क्या रेवेन्यू है, क्या टर्नओवर है हर साल का, बिकॉज उन्होंने अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में फोकस किया। अब बर्गर की बात करते, बर्गर तो यार हर सिटी में मिलता है, हर कैफे में, हर शॉप में आपको बर्गर अभी मिल जाएगा, फूड स्टॉल। भले मैं मान के चलता हूँ कि उसकी बर्गर की टेस्ट मैकडोनल्ड्स से बहुत, बट क्या वो मैकडोनल्ड्स के बराबर अपने बिजनेस को खड़ा कर पाएगा अकेले? वो नहीं कर सकता, बिकॉज मैकडोनल्ड्स के पास आज की डेट में नियर बाय 38,000 से भी ज्यादा लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर अकेला बंदा मेहनत कर रहा है, मैकडोनल्ड्स की तरफ नहीं पहुंचता। तो बिजनेस ओनर बनने में प्रॉफिट तो बहुत है, पैसे तो बहुत आएंगे, फिर लोग बनते क्यों नहीं लोग बिजनेस ओनर बनना पसंद करते? अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो लोगों के पास पैसे नहीं होते। बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते, फाइनेंशियली नहीं वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते, ताकि वो करोड़ों रुपए लगा सके या लाखों रुपए लगा सके बिजनेस के स्टार्टअप को स्टार्ट कर सके। चलो पैसे पैसे मैनेज भी कर लेंगे, मैनेज करने के बाद पता भी तो होना चाहिए ना कहीं पे उस पैसे को लगाना है, एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मार्केट में तो अभी बहुत स्कैम वगैरह सारी चीजें चल रही है, एक्सपीरियंस नहीं होता बिजनेस का, इस तरीके से बिजनेस को करना होता है। सिखाने वाले लोग नहीं होते, गाइड करने वाले लोग नहीं होते, एक सही मेंटोर नहीं होता, फेल्यूर का डर होता है। यार इतने पैसे तो हम लगा रहे हैं, बिजनेस की शुरुआत तो कर रहे हैं, अगर अगर मुझसे नहीं हो पाया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इट टेक्स टाइम, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। अगर हमने आज start किया, कल हमें लाखों का प्रॉफिट चाहिए होता है। अब अगर आप उस माइंडसेट से, लॉटरी माइंडसेट से अगर बिजनेस की शुरुआत करोगे, तो यकीनन आप आज नहीं तो बिजनेस में फेल ही होगे। यही सारी चीजें होती है, इसलिए लोग क्या पसंद करते हैं कि यार हम एम्प्लॉय करते हैं, सुबह शाम किसी के लिए काम करेंगे, घर आने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा, जैसे लाइफ चल रही है चलती जाएगी। पेशेंस नहीं होती, इसी तरीके से लोग अब बिजनेस ओनर को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस में रिसेशन भी होते हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे जो बड़े बड़े बिजनेस है, वो भी पूरी तरीके से फेल हो चुके थे, उनके बिजनेस बंद करना ड्यू टू पैंडेमिक। बट 3 इंडस्ट्री ऐसी थी कि जिस इंडस्ट्री ने इस बिजनेस में पैंडेमिक में बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को बूम किया। एजुकेशन इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, ये 3 इंडस्ट्री ऐसी है जो अभी भी वर्क करेगी, प्रॉफिट में रहेगी, आगे जाकर के भी वो प्रॉफिट में ही रहेगी। अगर आपका बिजनेस भी तीनों में से एक इंडस्ट्री में आ रहा है ना, तो समझ जाओ आपका बिजनेस पूरी तरीके से रिसेशन फ्री है। मतलब कभी आपका बिजनेस बंद नहीं हो सकता, लोग कभी पढ़ाई करना बंद नहीं करेंगे, कभी डॉक्टर के पास जाना बंद नहीं करेंगे, और अपनी सेहत का ख्याल रखना बंद नहीं करेंगे। और हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो पूरी तरीके से डिपेंड है, पूरी तरीके से बिलोंग करती है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से। अब ये हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से हमारी अपॉर्चुनिटी है क्या एग्जैक्टली, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर।
उसे ना बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी भी कहा जाता है। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से अगर स्टडी किया तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि इसे बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी भी कहा जाता है। अब बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी कहा तो जाता है, बट ये बिजनेस है क्या बेसिकली? इस बिजनेस में हम वर्क करते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के ऊपर, कि जहां पर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई भी कैपिटल आपको लगाना नहीं पड़ता, कि जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। जीरो इन्वेस्टमेंट से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर। टेस्ट प्लेग्राउंड होता है आपके स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो आप उस स्किल को यूज करके उसे ही मोनेटाइज करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आपके पास जो भी स्किल्स है उसी स्किल सेट को यूज करोगे, यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। और अगर स्किल्स नहीं है तो ट्रेनिंग सिस्टम आपको स्किल प्रोवाइड कर देगी, आपको सिखा देगी कि जिसके थ्रू आप इस बिजनेस को फिर आगे कर सकते हो। अगर मैं बात करूं पैसिव इनकम की, तो पैसिव इनकम मतलब होता क्या है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब तक काम कर रहे हो तब भी पैसे आएंगे, और काम नहीं करोगे तब भी आपके पास पैसे आएंगे। यानी कि आप पैसिव इनकम वहां पर बिल्ड कर सकते हैं। इस बिजनेस में आप एक एक्सीलेंट नेटवर्क को खड़ा कर सकते हैं, कि जो नेटवर्क आपको प्रॉपरली वर्क करके देगा, कि जहां पर आप अपने लिए काम करोगे। रिसेशन फ्री ये बिजनेस रहेगा, यानी कि कोविड हो तो भी, कोविड के अंदर भी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पेशेंस। राहुल जी का भी चैट बॉक्स में एक मैसेज आया, गेट ऑन टू द पॉइंट। इसलिए मैंने आपको बताया था कि बिजनेस ओनर हर कोई नहीं बनता, सिर्फ 5% ही लोग ऐसे कि जो बिजनेस ओनर बन पाते, बिकॉज ना उनके अंदर पैशंस नहीं होते। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको 30 to 45 मिनट्स तक इस मीटिंग में रहना पड़ेगा अगर आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझनी है। ठीक है। सो रिसेशन फ्री बिजनेस होता है, यानी कि कोविड के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो चुके थे, बट इस बिजनेस ने बढ़िया तरीके से बूम लिया था, बहुत सारे लोगों को एक इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी थी। अब कुछ लोग बोलेंगे यार मार्केटिंग का काम है, डिजिटल नेटवर्किंग का काम है, तो हमें कुछ प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट की सेल होती है। बट हाँ, आपको यहाँ पर खुद पर्सनली प्रोडक्ट का सेल नहीं करना है, आपको यहाँ पे सेल नहीं बनना है। सिंपल बिजनेस है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बट इजी नहीं है। अगर आपको यहाँ से इनकम करनी है, पैसे कमाने हैं, तो आपको यहाँ पर चीजों को सीखना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको इनकम आएगी। आपके एफर्ट के हिसाब से आप यहाँ पे इनकम को जनरेट कर पाओगे। अब जैसे हम डिजिटल नेटवर्किंग की बात करते हैं, कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि यार ये चैन सिस्टम वाला तो काम नहीं है, क्या हमें यहाँ पर अपनी चैन को तो खड़ा नहीं करना पड़ेगा, लोगों को तो नहीं जोड़ना पड़ेगा? सिंपल सी बात होती है कि चैन सिस्टम में ना दो काम होते हैं, एक होता है इलीगल, दूसरा होता है लीगल। इलीगल में सिंपल सा एक ही डिफरेंस है, कि जहां से आप समझ जाओगे ये चीजें इलीगल है या इलीगल है, कि प्रोडक्ट होना। अगर किसी बिजनेस में प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की सेल होने के ऊपर अगर आपके पैसे बन रहे हैं, देन इट्स लीगल। बट अगर किसी बंदे को आप ज्वाइन कर रहे हो, प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही, कोई सर्विसेज की सेल नहीं हो रही, फिर भी आपकी जेब में पैसे आ रहे, देन इट्स इलीगल। और जो भी अगर बात करें नेटवर्क की सिस्टम की, तो हाँ भाई, ये नेटवर्क सिस्टम होता है, यहाँ पर आपको चैन बनानी पड़ेगी, बिकॉज जितने भी बड़े बिजनेस है ना, हर एक बिजनेस में आपने देखा होगा कि लोग अपने नेटवर्क बनाने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। अब अगर हम बात फेसबुक की करें, तो फेसबुक क्या कर रहा है, पूरी तरीके से लोगों को सारी दुनिया भर में से एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट करके रख रहा है। मैकडोनल्ड्स अपने फ्रेंचाइजी के थ्रू लोगों के नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है, गूगल पे थ्रू बैंक नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है, केएफसी मैकडोनल्ड्स की तरह ही काम कर रहा है। अमेजोन की बात करें तो अमेजोन जो भी रिटेलर शॉप्स है उन सारे शॉप्स को एक साथ ले आकर के उनके नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि हर बंदा नेटवर्क को इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज उसे पता है कि नेटवर्क अगर बढ़ेगी तो अपनी ऑटोमेटिकली ग्रो लेगी। अब हम बात करते हैं कि एक्सपर्ट इस बिजनेस मॉडल के ऊपर क्या कहते हैं, जो मॉडल है डिजिटल नेटवर्किंग का, उसके बारे में जो एक्सपर्ट्स है उनकी क्या राय है। डोनाल्ड ट्रम्प जो कि 45th यूएस प्रेसिडेंट थे, फाउंडर एंड सीईओ है, ट्रम्प नेटवर्क के बहुत बड़ा बिजनेस है उनका खुद का, वो कहते हैं कि ये जो बिजनेस है, ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री और मोस्ट रिस्पेक्टेड गुड बिजनेस मॉडल है। जो कि जब भी किसी भी ऊपर इस बिजनेस के ऊपर बुरा वक्त आता है, वो अपने प्रूव करके दिखा। बिल क्लिंटन यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो 90s में यूनाइटेड स्टेट में क्रैश हुआ था इकोनॉमी, उसके बाद जो फिर से ऊपर उठी, उसके पीछे इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम बात करें रॉबर्ट टी कियोसाकी की, अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर है, वो एक बात कहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री को तभी आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अपने लाइफ में कुछ यूनिक बेनिफिट्स को चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ को अपने खुद के टर्म के ऊपर जीना है, आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो ये बिजनेस मॉडल आपके लिए हो सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया के मिसाइल मैन भी हम उन्हें कहते हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि ये जो बिजनेस मॉडल है 21st सेंचुरी का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल होगा। उसे हर एक यंग मैन को, वुमेन को ग्लोबली ज्वाइन करना है, अगर आपको अपने यूथ एज से बेस्ट ऑफ बेस्ट निकालना है, बेस्ट रिजल्ट अगर आपको वहां से निकालना है। अमिताभ कांत जो सीईओ है नीति आयोग के, उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो बिजनेस मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग का, इज अ वेरी
प्रोफेशनल मॉडल है, एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। और अगर इंडिया की इकोनॉमिकली अगर इन फ्यूचर भी अगर कहीं ग्रोथ होती है तो उसके पीछे सेलिंग का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, तो विवेक बिंद्रा बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत बड़ा उनका खुद का बिजनेस है, बड़ा बिजनेस नाम से, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। तो वो हम उनसे ही मुंह से सीखते हैं कि वो इस बिजनेस के बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। आप सफल हो या ना हो समस्या नहीं है, बट अगर आप सही मार्केटिंग कंपनी के अंदर होते हो तो आप अपनी ग्रोथ फाइनेंशियली भी और साथ ही साथ पर्सनली भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को तो हमने समझ लिया, एक ओवरव्यू तो आपको मिल चुका होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारा बिजनेस एग्जैक्टली किस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। हमारा जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से कनेक्टेड है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल से। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक टॉप ब्रांड है हेल्थ एंड वेलनेस का वर्ल्ड वाइड। यानी कि जैसे शूज की हम जब हम बात करते हैं, शूज की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास नाइकी का ऑप्शन होते हैं, हमारे पास रिबॉक, adidas, वो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। वैसे ही अगर हम हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो फॉरएवर अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड ब्रांड है। कंपनी की शुरुआत हुई थी 1978, नियर बाय 43 इयर्स ओल्ड ये कंपनी है। अगर मैं 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में एक्टिवली अपने बिजनेस को बिल्ड करिए, और ये आपको भी मौका देती है कि आप भी 175 प्लस कंट्रीज में चाहो तो अपने बिजनेस को इंटरनेशनली ग्रो कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड कंपनी के 2800 प्लस ओन ऑफिसेस है, जहाँ से कंपनी अपने ऑपरेशंस को हैंडल करती है। रेवेन्यू की अगर बात करूँ तो 380 करोड़ यूएसडी की कंपनी का रेवेन्यू है, इन 28,000 रुपीज, 28,000 करोड़ इंडियन रुपीज में वो रेवेन्यू चला जाता है। फॉर्च्यून 500 लिस्ट में कंपनी ने अपने आप को 4 बार लिस्टेड करवा के एसेट्स कंपनी के पास थे। और एफएलपी इज टोटली कैश रिच कंपनी। यानी कि एक बात अगर मैं बोलूँ कि अपने आप में मुझे फॉरवर्ड में बहुत बढ़िया लगती है, वो है कि 1978 से लेकर के कंपनी ने अभी तक किसी भी बैंक से, किसी भी इन्वेस्टर से पैसे नहीं लिए हुए। बैंक का लोन नहीं है, किसी भी टाइप की इन्वेस्टर नहीं है, शेयर मार्केट में रजिस्टर नहीं है, यानी कि वहां पर से भी पैसे नहीं आ रहे। कंपनी जितने भी ग्रो कर रही है खुद के दम पे ग्रो कर रही है। खुद के दम पे ग्रो इसलिए कर पा रही है बिकॉज फॉरएवर के पास ना दो ऐसे इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। सबसे पहले डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट को अगर देखोगे केपीएमजी एंड फिक्की के, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक, 2025 तक ये इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में 65,500 करोड़ से टर्नओवर को जनरेट कर सकती है। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, 2015 तक हम बात करें तो 80,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी। 2020 में क्या हुआ, कोविड आया, लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए, और ये इस इंडस्ट्री की ग्रोथ 80,000 करोड़ से डायरेक्टली 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई। और स्ट्रेंजली फॉरएवर हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो साथ ही साथ फॉरएवर के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी है कि जो आप अपने डेली यूजेस में यूज करते हो, लाइक एलोवेरा के ड्रिंक्स हो गई, हाइव्स हो गए, स्किन केयर, पर्सनल केयर, और ऐसे प्रोडक्ट जो पहले से हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, कोई और चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही हम उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। बट अब तक हम उनके साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाए। फॉरएवर आपको चांस देती है कि आप अपने ब्रांड को रिप्लेस करके यहाँ पर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। भाई किस तरीके से बिजनेस वर्क होता है तो आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कि जहां से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां तक प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, फिर मार्केटिंग होती है जहां पर करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे बिजनेस में डिफरेंस क्या आता है पता है? अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर एक प्रोडक्ट अगर 10 रुपए का मैन्युफैक्चर हो रहा है, हमारे पास आते आते उस प्रोडक्ट की कॉस्ट नियर बाय 100 प्लस हो जाती है।
क्यों हो जाती है? बिकॉज कंपनी को जो भी प्रोडक्ट सेल होता है उसके पीछे जो भी प्रॉफिट होता है वो उसे हर एक बंदे को शेयर करना होता है। बट हमारे बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो FLP मैन्युफैक्चर है जो आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, डायरेक्टली प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है थ्रू, बीच में सिर्फ आप होते हो, कोई और बंदा होता नहीं। यानी कि अगर 100 रुपीज की भी प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पर सेल कर रहे हो और 20 रुपीज अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी हम अगर हटा देते तो जो 80 रुपीज का कॉस्ट रहेगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी मिडिल मैन नहीं है। तो दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस। अब इस बिजनेस को हम समझेंगे किस तरीके से इस बिजनेस को चलता है, किस तरीके से यहाँ से हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है, बट उसके पहले हम एक चीज को समझते हैं, सीसी को। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी 175 प्लस कंट्रीज में एक्टिवली अपने बिजनेस को कर रही है ना, तो हर एक कंट्री में अलग अलग करेंसी होती है। तो उस करेंसी के अकॉर्डिंगली कोई भी कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज कंपनी आपको भी मौका देती है कि आप भी 175 प्लस कंट्रीज में अपने बिजनेस को कर सकते हैं। अब जब आप अपने बिजनेस को डेवलप करोगे तो आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना हो सीसी करेंसीज को लेकर के, तो कंपनी ने अपनी खुद की करेंसी स्टार्ट की है, कैश क्रेडिट यानी कि सीसी करके। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 1 सीसी की प्राइस इंडिया में होती है 15,000 रुपीज। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि जहां से आपको समझ में आएगा कि अब मुझे पैसे कैसे बढ़ने। जैसे ही आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो ना, आप लेवल पे होते हो प्रेफर कस्टमर के, आपकी लेवल होती है पीसी कस्टमर की। जब आप प्रेफर कस्टमर होते हो तो आपको अपने पूरे जो भी प्रोडक्ट्स है फॉरएवर में, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको फोन मिलता है। और जैसे ही आप प्रेफर कर में 5,000 की परचेसिंग को कंप्लीट कर लेते हो, और अगर आपने किसी को फिर बिजनेस पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ज्वाइन कर दिया, रिक्रूट कर लिया, तो उसके बाद आपको उनके टर्नओवर के ऊपर अकॉर्डिंगली 25% प्रेफर कस्टमर प्रॉफिट आता है। उसके बाद सबसे पहला हमारा लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन करने का गोल होता है कि हमें जल्दी से जल्दी करना है ताकि इस बिजनेस की आप सही तरीके से शुरुआत कर सको। और वो इंसेंटिव्स आप वहां से ही स्टार्ट कर पाओगे जब आप अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्वालिफाई कर लेते हो। 2 सीसी का टर्नओवर आपको किसी भी 2 कंसेक्यूटिव वर्ष में पूरा करना होता है, तब आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। बनने के बाद यहाँ से फिर आप अपनी टीम को डेवलप करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही आप अपने पूरे टीम को मिल करके 25 सीसी के बिजनेस को हिट करते हो, आप कंपनी में सुपरवाइजर बन जाओगे। और जैसे ही आप अपनी पूरी टीम को लेकर के फिर 75 सीसी और 120 सीसी तक पहुंच जाओगे, तो फिर आप हमें रिस्पेक्टिवली असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के लेवल को क्वालिफाई करते हो। अब जो भी बंदा इस बिजनेस को सबसे पहली बार स्टार्ट करेगा ना, तो उसका एक ड्रीम होता है कि यार मुझे ना जल्दी से जल्दी मैनेजर बनना है। क्यों बनना है मैनेजर? बिकॉज उसके बाद आपको बहुत ज्यादा इनकम की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। किस तरीके से बढ़ेगी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इस मीटिंग में ना इस पूरे मार्केटिंग प्लान को बिल्कुल इन डिटेल एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो जिस भी बंदे ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया हुआ है ना, उनसे आप डिस्कस करना कि मुझे मार्केटिंग प्लान के ऊपर जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग हुई है, हमारे जो भी लीडर्स है, राजीव सर है, साइमन सर है, उनकी खुद की ट्रेनिंग इसके अंदर सिर्फ मार्केटिंग प्लान को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से हर एक परसेंटेज वर्क होता है। तो वो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसके अंदर आप अच्छी तरीके से मार्केटिंग प्लान को समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड के अंदर इनकम पोटेंशियल कितना हो सकता है। अगर आप बिल्कुल पहले हो ना, नए हो बिजनेस में, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हो, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कम से कम ना 20,000 रुपए तक की मंथली इनकम को इजीली कर सकते हो। जैसे ही आप अपने सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप अपने मंथली इनकम को 45 to 50,000 के बीच में लेके जा सकते हो। जैसे आप कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, तब आप अपनी इनकम को नियर बाय 60 to 25,000 तक लेके जा सकते हो। और जैसे ही आप कंपनी में मैनेजर बनते हो, यानी कि मैंने आपको बोला था कि जिस तरीके से मैनेजर एक हर एक बंदे की एक ड्रीम लेवल होती है, ठीक है। मैनेजर बनने के बाद आपकी जो इनकम होगी वो नियर बाय 1 लाख रुपीज हो जाती है, कि जिसके थ्रू आप इस बिजनेस को, आपकी टीम भी बड़ी होगी, आप एज एन इंडिपेंडेंट लीडर बन के इस बिजनेस को लीड कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करी जाती है कि जिसके थ्रू आप मैक्सिमम 12 मंथ्स में अगर आप तरीके से काम करोगे, जो भी आ जाएगा उसके अकॉर्डिंगली अगर काम करोगे, अच्छी तरीके से अपने स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट होकर के अगर काम करोगे, तो मैक्सिमम 12 मंथ्स में आप अपने मैनेजर लेवल को, यानी कि एक जो ड्रीम लेवल होती है हर एक एफबीओ की, उसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ फॉरएवर आपको 10 टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेज प्रोवाइड करता है। उसमें से इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सबसे फेवरेट एक इंसेंटिव है फॉरएवर टू ड्राइव। और हमें साइमन सर को भी एक कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए, बिकॉज साइमन सर ने पिछले ही मंथ यानी कि फरवरी में या फिर जनवरी में उन्होंने कार प्लान लेवल 1 को फिर से क्वालिफाई किया था। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल्स होते हैं कि जिसके अंदर आप उस इंसेंटिव को क्वालिफाई करते हैं कि जिसके थ्रू आप अपनी कार को परचेस कर सकते हो, अपने हाउस और एनीथिंग दैट यू विश फॉर, सारी चीजों को क्वालिफाई कर सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। लेवल 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको कंपनी 26,000 पे करती है,
लेवल 2 के बाद कंपनी आपको 39,000 एंड लेवल 3 के बाद कंपनी आपको 52,000 रुपीज पे करती है फॉर नेक्स्ट 36 मंथ। यानी कि अगर कार परचेसिंग की बात और मैं लेवल 1 पे हूँ और लेवल 1 पे मैं कंपनी गिफ्टेड 9 to 10 लाख के बीच में कार को परचेस कर सकता हूँ। लेवल 2 में मैं 14 to 15 लाख तक की कार को परचेस कर सकता हूँ और लेवल 3 की बात करूँ रिस्पेक्टिवली मैं 18 to 20 लाख के बीच में कोई भी कार को फुल्ली कंपनी गिफ्टेड मनी से परचेस कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं फॉरएवर के सबसे बड़े बोनस की। सबसे बड़ी इनकम होती है चेयरमैन बोनस। इंडिया में उसे हम दिवाली बोनस भी, हमारा जो मेंटर है मिस्टर साइमन डेविस, उन्होंने बहुत बार उसे क्वालिफाई किया हुआ है। चेयरमैन 175 प्लस कंट्रीज में कंपनी कितनी भी टर्नओवर को जनरेट कर ले उसके अकॉर्डिंगली आपको 1%, 2%, 3% कंपनी आपको फिर से बोनस रिकैप देती है कि जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि मैंने चेयरमैन बोनस के लिए क्वालिफाई। आपको उसके लिए करना पड़ेगा, जो भी क्राइटेरिया होगा उसे फुलफिल करके आप उस लेवल को अचीव कर सकते हो। हम 2014 में उन्होंने क्वालिफाई किया था तब उनके चेक की अमाउंट समथिंग 2.5 करोड़ की थी। जब उन्होंने फिर से 2012 में क्वालिफाई किया था तब उनकी चेक की अमाउंट नियर बाय 2 to 2.5 करोड़ की थी। 2016 में उन्होंने क्वालिफाई किया था तो 80 to 90 लाख रुपीस का उनका चेक था, जो कि सिर्फ एक दिन की इनकम होती चेयरमैन बोनस। अब हम बात करेंगे 2021 की, यानी कि कोविड के अंदर पे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, और पूरी तरीके से कैश रिच कंपनी, किसी भी थर्ड पार्टी वहां पर इन्वॉल्व नहीं है। तो इसी की वजह से फॉरएवर पूरी तरीके से प्रॉफिट में होकर के अपने बिजनेस को ग्रो कर रही थी। जतिन अरोरा, रोहित अरोरा, उन्होंने अगर आप चेक्स देखोगे तो 68,000 यूएसडी डॉलर, यानी कि नियर बाय 40 to 50 लाख रुपीज जस्ट एज ए दिवाली बोनस। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो अगर इनकी चेयरमैन बोनस आप देखोगे तो इंडिया के टॉप चेक्स थे ये। और अगर एज की बात करूं जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, और चेक की बात 63 लाख रुपीज जस्ट उनकी दिवाली बोनस की इनकम थी, मंथली इनकम सेपरेट। तो इस टाइप से आप फॉरएवर के अंदर कोई भी इनकम को लेकर के आपको प्रेशर नहीं होगा, कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा कि आप इतने तक ही इनकम को अर्न कर पाओगे। चाहो इतने इनकम को आप यहाँ पे अर्न कर पाते हो। देयर इज अनलिमिटेड इनकम ऑप्शन। किस तरीके से हम आपको हेल्प करते हैं, थोड़ा सा ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में भी हेल्प बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में शुरू तो कर लोगे पर आगे ग्रो कैसे कर पाओगे। आपको तरीके से सिखाया जाएगा कि सोशल मीडिया को किस तरीके से आपको यूज करना है कि जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। आपको ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड की जाएगी दो सेक्टर में। एक आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी कि जहां पर आपको 3 दिन में सिखाया जाएगा, बिजनेस के बेसिक को क्लियर कर दिया जाएगा, प्रॉपर नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर हम 5 डेज की बात करें ना, तो 5 डेज में आपको वो सारी चीजें सिखाई जाएगी जो आपको बिजनेस को आगे बिल्ड करने में हेल्पफुल रहेगी। प्रॉपर एक्शन प्लान जाएंगे कि जिसके थ्रू, मान के चलो अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे काम करूंगी, पूरे दिन भर में से मैं 2 घंटे दे सकता हूँ, तो 2 घंटे में आपको कौन कौन से एक्टिविटीज करनी है कि जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को इजीली ग्रो करोगे, वो एक्शन आपको क्लियर कर दिए जाते हैं। आपकी जो अंदर जो भी पैशन होगी, जो भी आपकी स्किल होगी, कि जिसके अंदर आप श्योर होगे कि यार इससे बेहतर ना मैं किसी में हो नहीं सकता, ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसी प्लस पॉइंट को, उसी पैशन को हम सीखेंगे किस तरीके से आप एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकोगे ताकि वो ब्रांड आपके लिए बिजनेस डेवलप कर ले। स्टार्टिंग में आपको एक पर्सनल मेंटरशिप दी जाती है, जो कि हमारे मेंटर है मिस्टर साइमन डेविडसन, को लिविंग लेजेंड भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है उसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 2000 में कोई नहीं जान रहा था ना, सबसे पहले फॉलोवर के कोई ऑफिसेस भी नहीं थे इंडिया, ना ढंग के लिटरेचर थे कि जिसको हम प्रोडक्ट को समझा पाए, मार्केटिंग प्लान को समझा पाए, कोई चीजें नहीं थी, सारी चीजें अनस्टेबल थी। तब साइमन सर ने अपने बिजनेस की शुरुआत करी 2000 में, जब सबसे पहले इंडिया में फॉरएवर आया। लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस है सर के पास इस बिजनेस को करने का। इंडिया के अंदर पहले मैनेजर, पहले सफायर मैनेजर, सारी जो लेवल, सारी जो इंसेंटिव क्वालिफाई किए पहले होकर के दिए। अभी करंटली सफायर मैनेजर के लेवल पे बैठे हुए हैं। अर्न इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो नियर बाय 7 टाइम्स उन्होंने अर्न इंसेंटिव क्वालिफाई किया है। 7 से भी ज्यादा बार उन्होंने चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई किया। 100+ उन्होंने क्वालिफाई किए फॉरएवर के थ्रू। और अगर हम बात करें पिछले 22 साल में, उन्होंने अपनी टीम में 41 करोड़पति डेवलप करे हुए हैं। 41 करोड़पति यानी कुछ ऐसे लोग कि जिन्होंने अपनी बिजनेस हुए इनकम को, जितने भी साल उनको बिजनेस में उनकी इनकम को पूरे टोटल करके 1 करोड़ या तो अर्न करी अंडर द गाइडेंस ऑफ साइमन सर। क्या इंपॉर्टेंस है साइमन सर के मेंटरशिप को ग्रैब करने का। क्या क्या मिल सकता है आप इस बिजनेस को अगर आगे बढ़ते हो, स्टार्ट कर लेते हो। एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम आपके लिए अवेलेबल होंगे कि जहां पर आप 10 टाइम्स और 12 टाइप्स ऑफ इनकम सोर्स को स्टार्ट करोगे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रिप्स होगी, रॉयल्टी इनकम होगी। यू कैन डू बिजनेस 175 प्लस कंट्रीज इन एनीवेयर। 175 प्लस कंट्रीज में आप कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो जहां पर फॉरएवर के खुद के ऑफिसेस है। इनहेरिटेड बिजनेस होगा, यानी कि जब तक आप हो तब तक भी आप इस बिजनेस को करोगे, और जब
आप इस दुनिया को छोड़ करके जाओगे ना, आप अपने फैमिली के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाओगे। यानी कि मान के चलो, आप जॉब कर रहे हो, जॉब में अगर आपको कल कुछ हो भी गया है, तो आपको ये तो चीज पता है, अभी पता है कि अगर मेरी जॉब तो चली जाएगी, फिर अगर जिस फैमिली में हम हैं, अगर उस फैमिली के अगर आप अकेले अर्नर हो, तो फिर व्हाट अबाउट योर फैमिली? आपके फैमिली को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। बट उसी केस में अगर आप फॉरएवर के साथ हो, उसको अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हो, टीम होगी, जितने भी आपकी इनकम होगी, जितनी भी आपकी लेवल होगी, वो सारी चीज नो डाउट आप जीरो से शुरू करोगे। बट आप जब इस दुनिया से जाओगे ना, तब आप उसी बिजनेस को आपके नॉमिनी को देके जा सकते हो, और वो 3 जनरेशन तक आप आपके नीचे सरपास करोगे। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होगी, चाहो तब काम करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 5 घंटे करो, या तो फुल टाइम करो, या तो फिर वीकेंड के ऊपर फोकस करो, सैटरडे संडे काम करो। पूरी तरीके से टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। कौन कौन से लोगों के साथ काम करना है, ये भी आपको खुद चूज करना है, बिकॉज इट्स बिजनेस। अब इस सारी चीजों में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग करेंगे, आपको सिखाएंगे किस तरीके से बिजनेस को करना है, तो आपको यहाँ पर ना एक्सेप्ट द प्रोडक्ट कॉस्ट, किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी नहीं होती। आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी कमिटमेंट और एफर्ट्स को लगाना है, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, बिकॉज इट्स टोटली ऑल अबाउट योर बिजनेस। जितनी मेहनत आप खुद करोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट आप खुद अर्न कर पाओगे। किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप सभी को पता है, आप हर एक बंदा यूज करता है। अगर जो लोग नए हैं ना, कम से कम 2 से 3 घंटे ना इन प्लेटफॉर्म के ऊपर वेस्ट करते हैं, स्क्रोलिंग, लाइकिंग, टाइम पास करके, एंटरटेन यूज करते हैं। करना है पता है, उसी टाइम को जो वहां पर वेस्ट हो रहा है ना, उसी टाइम को आपको इन्वेस्ट करना है, चीजों को सीखना है, स्किल को डेवलप करना है, और अपने बिजनेस को डेवलप करना स्टार्ट करना है, ताकि आपके पास लर्निंग भी होगी, और उसके साथ ही साथ आप इस बिजनेस से अर्निंग भी पाओगे। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा यार अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, काम तो करने के लिए है, बिजनेस अच्छा है, बट कहीं आते आते लेट तो नहीं हो गया, अब मैं कैसे स्टार्ट करूं? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इट नेवर्स टू लेट। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आज के डेट में सक्सेसफुल है, मैकडोनल्ड्स की बात कर लो, तो उन्होंने जब उनकी एज 52 की थी, तब उन्होंने शुरुआत करी थी। केएफसी, उनके फाउंडर थे, उन्होंने केएफसी की शुरुआत करी थी जब उनकी एज 65 थी। तो एज इज जस्ट अ नंबर। अगर हम साइमन सर की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे भी अपनी टीम में जो नए लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बोल सकते हैं कार प्लान लेवल अचीव करना बहुत टफ है। अगर हम साइमन सर की बात करें, तो साइमन सर अभी भी कार प्लान लेवल को क्वालिफाई कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने पिछले मंथ भी उन्होंने उसे क्वालिफाई किया था, फॉरएवर की न्यूज लेटर में भी उनको रिकॉग्नाइज किया गया था। अगर हम बात करें पैसे की, टाइम नहीं है भाई, पैसे नहीं है हमारे पास ना, प्रायोरिटी नहीं है, हम नहीं कर पाते अपने बिजनेस को प्रायोरिटी पर सेट नहीं कर पाते। अगर हम आईफोन की बात करें, लाखों रुपए का फोन है, हम उसे इजीली खरीद लेंगे, बट उसी अमाउंट से भी आधा अमाउंट अगर हम बोले कि आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और बिजनेस करना है, पैसे कमाने, तो हम बोलते हैं यार बहुत ज्यादा अमाउंट है, पैसे नहीं है हमारे पास। उसी तरह से टाइम, टाइम नहीं है यार हमारे पास, हम बहुत बिजी इंसान है, हम चीजों को सीख नहीं सकते, ट्रेनिंग के लिए हम टाइम नहीं निकालेंगे। बट वही अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो यार नेटफ्लिक्स देख लो, अमेजोन देख लो, हॉटस्टार, Z5 देख लो, वेब सीरीज देख लो, हमारे पास टाइम ही टाइम है। फिर पूरी रात भी बैठ जाए, हम देख करके वेब सीरीज कंप्लीट करके ही उठेंगे, जितने भी एपिसोड होंगे हम कंप्लीट करेंगे और फिर ही उठेंगे, तब हमारे टाइम होता है। कहने का मतलब सिंपल सा यही है, लाइफ इज ऑल अबाउट योर चॉइसेस। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बस उस अपॉर्चुनिटी को समझ करके आपको वर्क करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्ट कीजिए। जो भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया, जितने भी नए लोग हैं ना, जिसने भी आपको इस मीटिंग की लिंक शेयर कर, आपको गाइड करेंगे, इसके साथ साथ ही साथ इस बिजनेस के आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी, बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसके बारे में आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको उस ट्रेनिंग को करना है, ताकि इस बिजनेस को सबसे पहले आप सीखोगे। एक बात याद रखना, 70% आपकी लर्निंग होगी और 30% ही आपका काम होगा। सबसे पहले चीजों को सीखने पे फोकस करो, जितना ज्यादा सीख उतना कमाओगे। And that's all about today. Thank you so much. I think Simon sir is there. संकेत, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपको सुनने के बहुत दिन के बाद, एंड इट वाज अमेजिंग एंड फैंटास्टिक रिस्पॉन्ड। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी जन ये सेमिनार देख रहे और संकेत का सेमिनार पसंद आया, तो प्लीज टाइप 1, एक टाइप करो, सो इट विल बी लाइक अ क्लैप। एक ही, इतने जन है हम लोग का, नियरली 54 पीपल आर देयर, सो वी शुड कम, ही शुड कम अगेन।
I think Shabana, you can type one many times. And thanks a lot. Thanks Seema. Thanks Jyoti. Thank you. Thanks Dr. Kumar. Rajiv, thank you. Sarita, thank you. Jyoti Sunil, thank you. So this was amazing. और मैंने ब्रॉडकास्ट में जो हमारे बॉम्बे के ऑफिस में जो ट्रेनिंग होते हैं वो भी मैंने अभी ब्रॉडकास्ट में पोस्ट किया है, तो यू कैन अटेंड दैट. ये जो ट्रेनिंग होते हैं ये बॉम्बे ऑफिस में होते हैं और ये लाइव ट्रेनिंग होते हैं. because now corona is gone and everything is opened up, so we are having this live training in the office, so please attend. ये attend करो. और मैं ये चाहता हूँ कि जिससे भी आपको ये लिंक भेजा है प्लीज गेट इन टच विद देम. वो आपके सर्विस सेंटर है और मैं ये चाहता हूँ कि आप उनके अंडर ज्वाइन करो जिसने भी आपको लिंक भेजा है. तो इट इज फैंटास्टिक. या वेल डन संकेत. यस यस, थैंक यू थैंक यू. संकेत आपको वेल डन बोला है तो मैं थैंक यू बोल रहा हूँ आपकी तरफ से. थैंक यू. तो अभी और एक गुड न्यूज है कि वेडनेसडे को जैसे संकेत ने बोला फुल इन डिटेल्स मार्केटिंग प्लान, राजीव मेहता is going to do a seminar on Wednesday, and I'm 1 or 2 days I'm in Pune, so all those who are in Pune are going to come and meet me. No problem, we can meet. I'll be staying at the Hyatt Hotel, so I'll be there for 2 days, so anyone who wants to come and meet, we can love to meet all of you. Yeah, and but only I would suggest positive people come and meet. और टाइम पास वाले को मत मिलो, नहीं तो वो पूरा दिल मेरा वेस्ट करेंगे. तो जो पॉजिटिव है वही आके मिलो मेरे को, तो इट बी ग्रेट. एंड रियलमी में हैंड अप किया. आई डोंट नो डज ही हैज अ क्वेश्चन और समथिंग, आई डोंट नो. रियलमी तो नाम, ये तो मोबाइल का नाम है, आई डोंट नो. रियलमी, इज इट यू हैव एनी क्वेश्चन? देन जस्ट टाइप देयर सो वी कैन आस्क द क्वेश्चन. आपने हाथ ऊपर किया है तो आई डोंट नो, इज इट यू हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और व्हाट, आई डोंट नो. सर पुणे में कब आ रहे हो? कल आ रहा हूँ. अच्छा, थैंक यू, थैंक्स लॉट. कल आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, एंड आई विल बी स्टेइंग एट द हयात होटल इन हिंजेवाड़ी, सो आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स. ओके, सो अब हाँ, हाथ ऊपर अभी नहीं है कुछ का, तो थैंक्स लॉट. और मैं ये चाहता हूँ कि और नॉलेज मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे भेजते रहूंगा, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ ट्रेनिंग. And on Wednesday, याद रखना, Wednesday 8 o'clock, we have Rajiv Mehta, who's one of the best person to talk on marketing plan. जो marketing plan जो राजीव मेहता explain करते हैं वो जबरदस्त है, और the technique he says and the amount of level that he says is outstanding. So I would also, in fact, I would say he's even better than me where marketing plan is concerned. I am good on the whiteboard, but he's fantastic. So guys, I'll not take much time of you all. God bless you. Thanks Sanket again for your good wishes. आपने मैं अच्छा, मेरे को और एक रिक्वेस्ट है, एक और क्वेश्चन है. हाँ, डू यू वांट टू सी संकेत एवरी वीक? क्या आपको ये चाहिए कि नो वन टाइप करो, इफ यू वांट टू सी संकेत एवरी वीक यू शुड कम. बिकॉज़ आजकल वो जरा थोड़ा क्या बोलता है उसको, कुछ बोल नहीं सकता. आई एम ट्राइंग टू बी डिसेंट. इफ यू टाइप वन दैट मींस यू वांट टू सी संकेत एवरी वीक. ये 3 ही वन है. यस वन. ये देखो 1 कितने आ रहे हैं भाई. मैंने कुछ बोल रहा हूँ संकेत, यू कैन सी द रिपोर्ट. अगर मैं कुछ बोलूंगा यू विल से मैं मेरा मसाला डाल रहा हूँ. मेरे को मसाला डालने की जरूरत नहीं, कांदा लहसुन डाल दिया, बाकी सब डाल देते हैं. सो थैंक यू गाइस, फैंटास्टिक, एंड विल रॉक द शो अगेन. एंड थैंक्स संकेत. सी यू टुमारो इन पुणे. बाय. थैंक यू. गॉड ब्लेस. बाय.